Today is 27th April 2020 and my topic today is marginal costing. Marginal costing, that is also called as a cost volume profit analysis. Cost volume profit analysis. In this chapter we have to analyze the cost of the product, volume matlab sale of the product, profit matlab margin that we have in the product. Before starting this, I just want to tell you the certain basic things about the what is marginal costing and the characteristics and the basic certain things about the marginal costing. Marginal costing is very betterly defined by the Institute of Cost and Management Accountants. Institute of Cost Management Accountant define marginal costing is the ascertainment of marginal cost. Marginal costing is the ascertainment of the marginal cost and of the effect on profit of change in the volume or output, change in the volume or output by differentiating the fixed and the variable cost. In this technique, only variable cost are charged to operation. In this technique of marginal costing, only variable costs are charged to the operation, process, product, leaving all indirect cost to be written off against profit. बेसिकली ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक है इसके अंदर ओनली वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करी जाती है किसी प्रोसेस के ऊपर, किसी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी ऑपरेशन के ऊपर. Indirect cost to be written off against profit in the period in which they arise. In the period in which they arise. Basically ये ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम खाली वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज करते हैं, बाकी कॉस्ट को हम चार्ज नहीं करते. वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज करते हैं ऑपरेशंस पे, प्रोडक्ट पे, प्रोसेस पे, leaving all other indirect costs to be written off against profit in the period in which they arise. Marginal costing is not a system of costing such as we have a process costing. It is not a system of costing. जैसे हमारे पास process costing है, job costing है, operation costing है, but ये एक ऐसी टेक्निक है which is concerned with the changes in the cost and profit resulting from the change in the volume of output. मार्जिनल कॉस्टिंग को हम वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोलते हैं. मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वेरिएबल कॉस्टिंग. ये एक टेक्निक है एनालिसिस करने की, प्रेजेंट करने की, कॉस्ट को, जो हेल्प करती है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में. इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट बेसिकली. इसके अंदर सारे एलिमेंट आते हैं कॉस्ट के. ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट लाइक प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल आर क्लासिफाइड अमंग द वेरिएबल एंड द फिक्स्ड. Even the semi-variable costs are analyzed into fixed and variable. मैं आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिक फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहा हूं. मैंने कहा आपको ये एक टेक्निक ऑफ एनालिसिस है, प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट दैट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन टेकिंग मैनी मैनेजरियल डिसीजन. बहुत सारे मैनेजमेंट के डिसीजन में काम आता है. And it is not an independent system like we have a process costing or a job costing. ये एक independent system नहीं है. जैसे हमारे पास process costing, job costing, वो एक independent system है costing की. इसमें सारे एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं. प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर क्लासिफाइड अमंग वेरिएबल एंड फिक्स्ड. इसमें हम हर चीज को फिक्स्ड और वेरिएबल में क्लासिफाई करते हैं. इवन दो सेमी वेरिएबल चीजों को भी हम क्लासिफाई करते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल के अंदर. मैंने आपको बताया मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड अ वेरिएबल कॉस्टिंग. ठीक है. यहां पे जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको हम ट्रीट करते हैं पीरियड कॉस्ट. कभी आपसे पूछा जाता है व्हाट इज पीरियड कॉस्ट. पीरियड कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज अ फिक्स्ड कॉस्ट बिकॉज दैट आर चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड इन विच दे वर इनकर्ड. फिक्स्ड कॉस्ट ट्रीट करी जाती है पीरियड कॉस्ट एंड are charged to the profit and loss account for the period in which they incurred. जिस पीरियड में वो incurred होगी उस पीरियड में वो चार्ज करी जाएगी. स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, WIP, मार्जिनल
are valued at marginal cost only. The stock of finished goods WIP सब वैल्यू किस पे होता है? मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर. Price are determined on the basis of marginal cost by adding the contribution. Price जो determine होगा वो marginal cost के basis पे होगा. मतलब यहाँ पे marginal cost को हम ध्यान रख रहे हैं, marginal cost से ही हम price determine कर रहे हैं by adding the contribution. By adding the contribution. ओके, मार्जिन कॉस्टिंग मैंने आपको बताया थोड़ा सा क्या है बेसिक्स का मतलब. कुछ इसके फायदे भी हैं टेक्निक के. फायदे ये हैं बेसिकली इसके, इट इज सिंपल टू ऑपरेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड. मार्जिन कॉस्टिंग इज सिंपल टू ऑपरेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड. रिमूव कॉम्प्लेक्सिटी. इसमें कोई अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन हम करते थे ओवरहेड के अंदर, अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन, दीज आर द कॉम्प्लेक्सिटी, वो इसके अंदर नहीं है मार्जिन कॉस्टिंग के अंदर. इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन प्रोडक्शन प्लानिंग. मार्जिन कॉस्टिंग बहुत हेल्प करता है मैनेजमेंट को प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर. कोई इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है फिक्टिशियस प्रॉफिट की, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती इसके अंदर. वैल्यूएबल एडेड टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग. मार्जिन कॉस्टिंग हेल्प्स वेरी मच टू द मैनेजमेंट इन वैल्यू एडिशंस. हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल, प्रॉफिट प्लानिंग में काम करता है मार्जिन कॉस्टिंग. एंड इट ऑल्सो हेल्प द मैनेजमेंट रिपोर्टिंग. मैनेजमेंट रिपोर्टिंग में भी काम करता है. कॉम्प्लीमेंट्री, इट ऑल्सो हेल्प इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल में भी मार्जिन कॉस्टिंग काम करता है. हम बोल सकते हैं इसको इट कॉम्प्लीमेंट्री टू द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल. इट ऑल्सो फैसिलिटेट स्टडी ऑफ रिलेटिव प्रॉफिट निकालने में भी हमें काम हेल्प करता है. These are the various advantages or benefits of the margin costing. There are certain limitations also. In spite of so much advantages, the margin costing suffer from following limitations. वो limitation क्या है? Fixation of selling price in the long run cannot be done without considering fixed cost. मैंने कहा आपको मार्जिन कॉस्टिंग में हम कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करके, मार्जिन कॉस्टिंग कंसीडर करके हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं, बट इन द लॉन्ग रन इट कैन नॉट बी डन विदाउट द हेल्प ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, बिकॉज प्राइसिंग डिसीजन कैन नॉट बी बेस्ड ऑन मार्जिन कॉस्ट. कोई मैनेजमेंट अपना डिसीजन खाली वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिन कॉस्ट के बेसिस पे नहीं ले सकती, फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर करना पड़ेगा. कॉस्ट कंट्रोल कैन बी बेटर बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ अदर टेक्निक्स. हमारे पास और बहुत अच्छी टेक्निक्स है मार्जिन कॉस्टिंग के अलावा, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, बजटरी कंट्रोल हो गया. दे आर मच बेटर देन द मार्जिन कॉस्टिंग टेक्निक्स. these are basically the disadvantage or the limitation we have in the margin costing. completely ignore करता है टाइम फैक्टर, completely ignore the टाइम फैक्टर. ओके, मार्जिन कॉस्टिंग के अंदर हम अगर बात करें तो हम फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी. मार्जिन कॉस्टिंग इग्नोर द फैक्ट दैट फिक्स्ड कॉस्ट आर आल्सो कंट्रोलेबल. हम जब मार्जिन कॉस्टिंग पढ़ते हैं देयर आर सर्टेन अजम्पशन जिसमें माना जाता है कि फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द लिमिटेशन कि फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट एक लेवल के बाद. और वैसे भी मार्जिन कॉस्टिंग इग्नोर करता है फैक्ट को कि फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रोलेबल है. Fixed costs are also controllable. Selling price does not remain constant. आपको पता है ये selling price constant नहीं रहता forever. For all the levels of output, due to competition, due to discount, due to bulk order, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें consider करनी पड़ती हैं. That change the level also, price level. This is one of the limitation कि selling price कब हमेशा constant नहीं रहता forever. all the outputs due to competition, discount, bulk order, change in the price level, these are the things that will impact a lot on the selling price. Okay, मार्जिन कॉस्टिंग बेसिकली आपको थोड़ा सा पता लग गया कि मार्जिन कॉस्टिंग है क्या. मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई वो एज गिवन बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बट मैंने सिंप्लीफाइड आपको बता दिया कि मार्जिन कॉस्टिंग एक टेक्निक है जहां पे हम वेरिएबल कॉस्ट, ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू द ऑपरेशन, प्रोसेस और प्रोडक्ट, लीविंग ऑल अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट टू बी रिटन ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट इन द पीरियड इन विच दे अराइज. बेसिकली
ये मीनिंग है इसका मार्जिन कॉस्टिंग का. एंड मार्जिन कॉस्टिंग इज आल्सो नोन एज अ वेरिएबल कॉस्टिंग. लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ दिस. ठीक है, देखिए आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है, बेसिकली इस पे लिखा हुआ है मार्जिन कॉस्टिंग कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस. आप देखेंगे इसको कि यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, द फॉर्मेट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट. मतलब घुमा फिरा के बात बस इतनी सी है कि सेल माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट, उसी को हमने समझना है. सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. अब बात आती है कि सेल क्या होता है. पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं. सेल फॉर एग्जांपल हमारी 2 लाख की है किसी प्रोडक्ट की, और सपोज वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इस तरह की वेरिएबल कॉस्ट हमारी 50,000 है. तो हमें उस प्रोडक्ट से कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख का आ गया. 1.5 लाख 2 लाख का 75% है. कैसे किया? 1.5 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100. वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो कैसे आई? 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, 25%. ये दोनों हमेशा ही 100% होगा. दैट इज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो एंड वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो. 2 रेशियो की हमने बात कर ली. वन इज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, अनदर वन इज अ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो. हमेशा दोनों टोटल 100% होगा. माइनस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट करोगे, यू हैव योर प्रॉफिट दैट इज 1 लाख. 1.5 लाख में से 50,000 माइनस करके 1 लाख आ गया. हर सिचुएशन को, मार्जिन कॉस्टिंग को आप इस फॉर्मेट के अंदर कवर करोगे. पहले तो जितना भी डाटा दिया होगा अब इसके अंदर आप जो भी चीजें दी हैं आप इसके अंदर पुट कर दो. फिर पुट करने के बाद आप सोचिए वो पूछ क्या रहा है आपसे. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे बात करी गई है सेल्स. सेल्स के अंदर 2 तरह की सेल आती है. सेल हम बात कर रहे हैं टोटल सेल. सेल में 2 चीजें आएंगी. वन इज अ ब्रेक इवन सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज अ नो प्रॉफिट नो लॉस. एक ऐसा पॉइंट ऑफ सेल जहां पे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा. हर बिजनेसमैन चाहता है कि मेरे को फटाफट पता लग जाए जो मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं मेरा ब्रेक इवन कब आएगा, मेरे को किस पॉइंट पे पहुंच के मेरे को पता लगेगा कि मेरे को प्रॉफिट इस पॉइंट के बाद मेरे को प्रॉफिट होगा और इससे नीचे रहूंगा तो लॉस होगा. जैसे हर दुकानदार को पता होता है कि मेरा इस प्रोडक्ट पे कितना मार्जिन है कितना नहीं है. कई बार आप उससे बार्गेनिंग भी करते हो, तो दुकानदार से आप बात करते हो कि मान लो 10 रुपए की चीज आप कहते हो नहीं 6 रुपए की दे दो, कहता नहीं 7 रुपए से कम नहीं दे पाऊंगा. तो उसको पता है उसका ब्रेक इवन क्या है, इस पॉइंट के बाद उसका प्रॉफिट है, इस पॉइंट के बाद उसका लॉस है. ओके, तो सेल इंक्लूड 2 थिंग्स. वन इज अ ब्रेक इवन सेल, वन इज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ब्रेक इवन सेल वी कॉल्ड एज अ एक ऐसा पॉइंट ऑफ सेल जहां ना प्रॉफिट है ना लॉस है. इस पॉइंट के बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, इस पॉइंट के नीचे लॉस ही लॉस है. आप मैं पॉइंट जो वर्ड यूज कर रहा हूं, पॉइंट का मतलब है इस इतनी यूनिट्स तक आपको लॉस होगा, या इस पॉइंट तक, इस यूनिट्स तक, इस लेवल तक. आपको डायग्राम दिख रहा है. डायग्राम में देखिए वहां पे टोटल कॉस्ट और टोटल सेल बना रखी है. जहां टोटल कॉस्ट टोटल सेल मैच कर रहे हैं वो ब्रेक इवन पॉइंट है. उसके ऊपर वाला लेवल सारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, उसके नीचे वाला सारा लेवल लॉस वाला लेवल है. तो ब्रेक इवन सेल आप कैसे निकालोगे? देयर इज अ फॉर्मूला लाइक फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से जब फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करोगे तो आपके पास ब्रेक इवन सेल इन यूनिट्स आ जाएगी. जिसमें आ जाएगी इन यूनिट्स. अगर आपने ब्रेक इवन सेल इन रुपीज निकालनी है तो फिक्स कॉस्ट को आप पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो. पीवी रेशियो क्या होती है बताता हूं मैं भी आपको. पीवी रेशियो का दूसरा नाम है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो. कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो. ओके, सेल में 2 चीजें आती है. ब्रेक इवन मैंने आपको बता दिया. आगे आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसको हम बोलते हैं एमओएस. मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली क्या है? ये प्रॉफिट पार्ट है उस प्रोडक्ट का. ब्रेक इवन के बाद वाला प्रॉफिट वाला पार्ट सारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कंप्यूट करोगे? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. जब प्रॉफिट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करोगे आप, तो आपको आंसर आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स. अगर आपको रुपीज में चाहिए तो प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो कर दो. और पीवी रेशियो को मैंने आपको बताया, पीवी रेशियो इज आल्सो कॉल्ड एज अ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो. फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे. पीवी रेशियो दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स. जैसे यहाँ पे है 150 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, दैट इज अ पीवी रेशियो. बेसिकली 75% इज आवर पीवी रेशियो. प्रॉफिट को अगर 75% से डिवाइड करोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन
रुपीज आ जाएगा। सिमिलरली फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास 50,000 है इस एग्जांपल में। 50,000 को अगर पीवी रेशियो हमारे 75% है तो उसे डिवाइड करोगे तो आपके पास ब्रेक इवन सेल इन रुपीज आ जाएगी। पीवी रेशियो का एक और फॉर्मूला है। कई बार क्या होगा, आपको दो लेवल पे या दो अलग, जैसे 2 क्वार्टर का डाटा दिया हुआ या 2 सालों का डाटा दिया हुआ है या 6 महीने का अलग 6 महीने का अलग डाटा दिया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको पीवी रेशियो निकालनी होगी या कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालनी होगी तो फॉर्मूला होगा चेंज इन प्रॉफिट, दोनों लेवल पे जो डिफरेंस इन प्रॉफिट होगा डिवाइड बाय डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100। डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय डिफरेंस इन सेल इनटू 100 करोगे। ओके, नेक्स्ट आता है, कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा आपसे डिजायर्ड सेल निकालो, रिक्वायर्ड सेल निकालो। व्हाट इज अ डिजायर्ड सेल, व्हाट इज अ रिक्वायर्ड सेल? मेरे को इतना प्रॉफिट कमाना है, मैं कितना सामान बेचूं, दैट इज कॉल्ड टू बी अ डिजायर्ड और रिक्वायर्ड सेल। मेरे को 5 करोड़ प्रॉफिट कमाना है, मेरे को इस प्रोडक्ट का कितना सामान बेचना चाहिए। हाउ वी हैव टू कंप्यूट रिक्वायर्ड और डिजायर्ड सेल? देयर इज अ फॉर्मूला लाइक जितना फिक्स कॉस्ट है वो लिख लो प्लस जितना आप डिजायर कर रहे हो प्रॉफिट वो लिख लो 5 करोड़ डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो, आपके पास अमाउंट आ जाएगा। इतना सामान बेचोगे तो ये प्रॉफिट होगा, इतना सामान आप बेचोगे तो इतना प्रॉफिट आपको अटेन होगा। ओके, नीचे लिखा है प्रॉफिट। प्रॉफिट हम कह सकते हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो, सारी चीजें आपको पता लग रही हैं। सेल में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन आ रहा है, फिक्स कॉस्ट माइनस कर रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है। इसी के आसपास सब कुछ घूम रहा है। प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, और कंट्रीब्यूशन को हम कह सकते हैं सेल इनटू पीवी रेशियो। आप पीवी रेशियो का फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन एस इंटू 100, सी अपॉन एस इंटू 100। तो अगर मेरे पास सी मेरे को चाहिए, एस इंटू पीवी रेशियो कर दूंगा तो भी तो सी आ सकता है ना। प्रॉफिट का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, सिंपल लिखा हुआ है। क्या कंट्रीब्यूशन को मैं ये भी लिख सकता हूँ सेल्स इनटू पीवी रेशियो, बिकॉज पीवी रेशियो का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ओके, ये छोटा सा एक एग्जांपल सा किया हुआ है आपका, दैट इज सिंपली सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। जो भी सिचुएशन आपको दी होगी आपने बस प्लॉटिंग कर देनी है, पुट कर देनी है फिगर, उसके बाद फॉर्मूला लगाओगे तो आपको सब पता लगना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। Sale is selling price we have given in this situation like 30 rupees. Variable cost is 15 rupees. After deducting the selling price variable cost, we have a contribution 15 rupees. Contribution upon selling price into 100, that is 50%, and variable cost upon sale into 100, selling price into 100, 50. दोनों 100% है। फिक्स कॉस्ट 2,40,000 भी है। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि ब्रेक इवन निकालो, तो ब्रेक इवन तब निकालो अगर हम इन जनरल ब्रेक इवन निकाल दिया, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 240 डिवाइड बाय 15, 16,000 पर यूनिट्स आ गया ब्रेक इवन, सेल इन यूनिट्स आ गया। क्वेश्चन में एक और पार्ट पूछा गया था, अगर 10% हम सेलिंग प्राइस कम कर दें तो ब्रेक इवन पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप 10% सेलिंग प्राइस कम करोगे 30 माइनस 10% 27, बाकी तो सेम रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट नो चेंज, तो 27 माइनस 15 12 आ गया। अब नया ब्रेक इवन कैसे निकालोगे, 240 डिवाइड बाय 12 करके 20,000 ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएगा। इनको समझने के बाद आपको ध्यान देना ये है कि आपको बस पुट करनी है चीजें इस फॉर्मेट में, बस सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट, और उसके बाद फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। आगे आता है ये कुछ और बेसिक सी चीजें हैं इसके अंदर, बट मेजर आप पार्ट पहले अभी ये वाला कवर करना, ये भी मैं आपको समझा देता हूं होता क्या है। ये सारा फॉर्मूला ही है बेसिकली। देखिए, देयर इज अ वर्ड इंडिफरेंस पॉइंट, मैं थोड़ा जूम करता हूं इसको। देखिए, हाँ, ये पूरा कवर है, फर्स्ट पॉइंट पूरा कवर है। द वर्ड इज अ इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमें दो ऑप्शन दिए होंगे, टू ऑप्शन आर इक्वल, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमें दे रहे हैं। एक ऐसे पॉइंट मतलब दो प्रोडक्ट हो गए, एक एक्स और एक वाई प्रोडक्ट हो गया, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं एक पॉइंट पे हमें, जिस पॉइंट को दे रहे हैं, जिस पॉइंट पे हमें सेम प्रॉफिट दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस पॉइंट।
डायग्राम बना हुआ उसमें दिखाया हुआ आपको प्रॉफिट ऑफ एक्स एंड प्रॉफिट ऑफ वाई जिस पॉइंट पे इक्वल है क्वांटिटी अमाउंट के हिसाब से उसको हम बोल रहे हैं इंडिफरेंस पॉइंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं इसको। एक ऐसा पॉइंट जहां दो अलग ऑप्शन सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देते हैं उसको इंडिफरेंस पॉइंट कहा जाता है। इसको कैसे निकालोगे आप? दो लेवल पे डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट, डिफरेंस इन वेरिएबल, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन पीवी रेशियो या डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। इन यूनिट्स में निकालना है तो आपको चाहिए होगा पर यूनिट डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन कॉस्ट पर यूनिट और डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जब भी आप पर यूनिट से डिवाइड करोगे तो आंसर यूनिट्स में आएगा, जब भी आप रेशियो से डिवाइड करोगे तो आंसर रुपीज में आएगा। ओके, सेकंड आता है शट डाउन पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट कि हमें किस लेवल पे या अगर हमें ऐसा इतना नुकसान हो रहा है बिजनेस के अंदर तो हमें किस लेवल पे बिजनेस को शट डाउन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। कहता है शट डाउन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस लेवल पे हमें बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, बिकॉज इसके बाद तो हमारी कॉस्टिंग क्या प्रॉफिट तो वैसे भी लॉस में कन्वर्ट हो गया। बट कुछ ऐसा होता है, हर डिसीजन प्रॉफिट से नहीं लिया जाता, कुछ डिसीजन के लिए हमें कॉस्टिंग को भी ध्यान देना पड़ता है। प्रोडक्ट को चलाना जरूरी इसलिए भी हो सकता है कई बार कि प्रोडक्ट के चलाने से हमें हमारी कुछ ऐसी कॉस्ट रिकवर हो रही है जो प्रोडक्ट को बंद करने के बाद वो कॉस्ट भी हमें नुकसान देना शुरू कर देगी। तो शट डाउन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमें बिजनेस बंद कर देना चाहिए। वो उस उतनी यूनिट्स, मतलब इससे कम अगर हम यूनिट्स बना रहे हैं तो हमें बंद कर देना चाहिए। फॉर्मूला इज अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट कैसे कंप्यूट करोगे? टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस मिनिमम अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। अगर आपने आंसर रुपीज यूनिट्स में निकालना है तो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इन यूनिट्स में आ जाएगा। आपको गिवन होगा, आपके लेवल पे इतना ज्यादा डिटेल्ड और ये सारा कुछ नहीं है शट डाउन पॉइंट और ये। नेक्स्ट आता है की फैक्टर। की फैक्टर बेसिकली क्या है? एक लिमिटिंग फैक्टर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लिमिटिंग फैक्टर, जिसको बोलते हैं जहां लिमिटिंग फैक्टर जहां पे हमारे पास अवेलेबिलिटी कम है, चीजों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। चीजों की अवेलेबिलिटी हमारे पास कम है बट रिक्वायरमेंट ज्यादा है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट सिचुएशन है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन या सिचुएशन दिखेगी मार्जिन कॉस्टिंग में और आपको लगेगा कि लिखा गया है ऐसा कि हमारे पास लेबर आवर्स कम है, हमारे पास मटेरियल पर यूनिट कम है, हमारे पास ये चीज कम है, तो आप समझ जाना कि वो की फैक्टर की बात कर रहा है। इसमें करना क्या होगा आपको ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन निकाल लिया ए का, ऐसे ही बी का निकाल लिया, इनकी रैंकिंग कर दी एज पर द कंट्रीब्यूशन। हमेशा आपने ऐसे करना है, जैसे यहाँ पे 3 रुपए कंट्रीब्यूशन है या 1 रुपए कंट्रीब्यूशन है तो जिसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है हमें उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए और दूसरे को हमें पहले हमें ए को कंसिडर करना चाहिए सारी यूनिट्स बनाने के लिए, उसके बाद हमें बी को कंसिडर करना चाहिए बैलेंस यूनिट्स बनाने के लिए। ओके, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास शॉर्टेज है रॉ मटेरियल की। सपोज द सिचुएशन गिवन दैट वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो आपको कंप्यूट क्या करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन पर रॉ मटेरियल निकालना पड़ेगा। यू हैव टू कंप्यूट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी 3 रुपए और 1 रुपए है आपके पास, रॉ मटेरियल पर यूनिट आपको दिया होगा। जब आप कंट्रीब्यूशन को रॉ मटेरियल पर यूनिट से डिवाइड करके जो आएगा 2.5 और 4 आया फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग करना। इस क्वेश्चन और इस सिचुएशन को देख के हमारी रैंकिंग बी को प्रायोरिटी दे रहा है बिकॉज रॉ मटेरियल हमारे पास शॉर्टेज है रॉ मटेरियल की, और शॉर्टेज जब रॉ मटेरियल की है तो हमें बी को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अगर आप बी को प्रायोरिटी दोगे और उसके बाद बैलेंस यूनिट्स ए की बनाओगे तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। वो जो प्रोडक्ट मिक्स बनेगा आपका वो बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स बनेगा। बेसिकली की फैक्टर काम आता है, हमारे पास 4-5 प्रोडक्ट होते हैं तो उनमें से कौन सा प्रोडक्ट को हमें कैसे कितनी प्रायोरिटी देनी है। कई बार हमारे पास कंस्ट्रेंट्स आ जाती हैं कि हम ज्यादा यूनिट्स नहीं 1000 यूनिट्स बनानी है, तो हम देखेंगे सबसे पहले हम बी की सारी यूनिट्स बना ले, बैलेंस बच गया तो हम ए की यूनिट्स बनाएंगे। इस तरह की सिचुएशन में की फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर काम आएगा आपके। करना क्या है मैं रिपीट करता हूँ, जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के रैंकिंग कर देना। After that you have to look into the question and find out which one is the key factor। जो की फैक्टर होगा उस की फैक्टर को क्या करना है, डिवाइड में रखना है।
कंट्रीब्यूशन को ऊपर रखना डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल पर यूनिट। जब आप डिवाइड करके रैंकिंग निकालोगे, वो रैंकिंग इन इटसेल्फ इज द बेस्ट मिक्स, कि हमें इसको पहले प्रायोरिटी देनी है, इसको हमें सेकंड प्रायोरिटी देनी है। बेसिकली इस में इतना ही है अभी आपके लिए, बिकॉज बाकी अपने क्वेश्चंस आप जितने ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको ये बेस्ट क्लियर होगा चीजें। बेसिक तो फॉर्मूला यही है जो यूज होते हैं मार्जिन कॉस्टिंग के अंदर।